Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you know your momentum? I welcome you all to yet another episode of our brand new series called Know Your Momentum for O levels with your favorite physics teacher, Usman bin Aslam. Today is going to be our lecture number 9 of our syllabus, and today we are going to discuss a lot of precautions, a lot of tiny things which are popping up in my head, and then we are going to try and solve a few past paper questions just to round it up. Okay, so regarding electricity, obviously electricity, it's a pretty dangerous phenomena. So we have to keep a few things in our mind just to safely use it. We know that it's very useful, but it's dangerous as well. Why? Just let me tell you why it's dangerous. Whenever you get in contact with a live wire, what exactly is a live wire? I will define the live wire for you. Live wire वो होती है जिसके अंदर किसी सोर्स से चार्ज पार्टिकल्स एनर्जी लेकर फ्लो कर रहे होते हैं. If somehow you get in contact with a live wire and you are in contact with the ground, we know that the ground or the earth behaves like a bank of electrons. A bank of electrons. So what can happen? Your body itself is a good conductor of electricity. So when electrons see that the object is connected with the ground, the electrons which are flowing in this live wire, they are going to flow through your body and they are going to go down to the earth. Obviously, as your body is a conductor, it must have a resistance of its own. So इसीलिए when electrons flow through your body and go down to the earth, that is when they create vibrations and that is when they create heat in your body. वो जो हमें एक electric shock लगता है, that is a result of electrons flowing through your body and down to the earth. So why should we try to keep electricity safe? No, why should we try to keep ourselves safe from electricity? Just to avoid electric shocks, because 0.07 ampere current, this is enough for you to feel it. इतना करंट आप फील कर सकते हैं. अगर करंट की वैल्यू 0.7 एम्पेयर तक पहुंचे, दिस कैन कॉज डिस्कम्फर्ट. इतना करंट आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है. मैं करंट की बात कर रहा हूं, मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा. अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होके 1 एम्पेयर हो जाए, तो ये 1 एम्पेयर करंट कैन कॉज स्लाइट इंजरीज. और अगर यही वैल्यू बढ़ के 3 एम्पेयर हो जाए, तो इट कैन कॉज लार्जर इंजरीज, जिसकी वजह से बॉडी पे बर्न्स क्रिएट हो सकते हैं, मसल्स के अंदर स्पैजम्स क्रिएट हो सकते हैं. और अगर इससे ज़्यादा करंट आप बढ़ाते जाएं, तो वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है. अल्टीमेटली इट कैन कॉज डेथ एज वेल. सो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सेफली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. हमें अगर हम सेफली यूज़ नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, वो भी अभी हम देखते हैं. उससे पहले हम आज की हेडिंग लिख लेते हैं, विच इज़ द सेफ्टी प्रिकॉशंस. इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, वो मैं आपके लिए आज डिस्कस करूंगा. कुछ जनरल सी बातें होती हैं, जैसे डैम्प कंडीशंस में नहीं यूज़ करना चाहिए. ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता हैं. मैं आपको आज बताने वाला हूं कि फ्यूज क्या होता है. फ्यूज, a fuse, it is a device which allows only a certain amount of current to flow. Certain amount of current to flow. अगर उस certain amount से ज्यादा करंट फ्लो होने की कोशिश करे, तो वो करंट जो फ्यूज है वो उसको गुजरने नहीं देता. फ्यूज का एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन मैं आपको बना के दिखाता हूं. इस तरह का एक डिवाइस का जो शेप है वो जनरली कुछ इस तरह की होती है. ये प्लास्टिक के स्टड्स होते हैं और इसके अंदर यहाँ पर एक वायर होती है. ठीक है जी. ये जो वायर होती है ऑब्वियसली ये कंडक्टर होता है,
लेकिन इस कंडक्टर को डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि ये सिर्फ एक खास वैल्यू ऑफ करंट अपने से गुजरने दे। अगर करंट उससे ज्यादा गुजरने लगे तो ये वायर सेंटर से मेल्ट हो जाती है, करंट आगे जा ही नहीं पाता। तो वो जो सर्टेन वैल्यू जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, इसको हम कहते हैं करंट रेटिंग। करंट रेटिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फ्यूज की करंट रेटिंग है 3 एम्पेयर, इसका मतलब ये है कि अगर इस फ्यूज में से 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा तो ये इसको नॉर्मली आगे जाने देगा। अगर ये करंट बढ़ के 2 हो गया तब भी ये फ्यूज नॉर्मली करंट को जाने देगा। अगर ये करंट बढ़ के 3 हो गया तो ये वायर जो है अचानक इतनी हीट अप हो जाएगी कि सेंटर से मेल्ट कर जाएगी, एंड दिस वायर अपॉन मेल्टिंग इट्स गोइंग टू लूज कनेक्शन बिटवीन द टू पार्ट्स। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पार्टिकल्स आगे नहीं जा सकेंगे। आगे जो भी डिवाइस लगी होगी उसको एक एक्सेस करंट जाने से बच जाएगा और जो हमारी डिवाइस है वो सेफ रहेगी। फ्यूजेस का काम ये होता है, अगर किसी वजह से जरूरत से ज्यादा करंट फ्लो करने लगे सर्किट में तो वो फ्यूज मेल्ट कर जाता है ताकि उससे लगी हुई जो डिवाइसेस हैं आगे वो सेफ रहें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ताहा ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो करंट है ये किस वजह से ज्यादा हो सकता है। तो ताहा आपकी मालूमात के लिए मैं जरा बता देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टर की वैल्यू है आर, और फ्यूज ऐसे लगा हुआ है। ये जो मैंने यहाँ पर बना कर दिखाया है ये फ्यूज का सर्किट सिंबल है। दिस दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ अ फ्यूज। अब ये फ्यूज लगा हुआ है, लेट्स से ये जो भी रेजिस्टर है इसकी वजह से इसके अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो मेरा जो फ्यूज है इसकी करंट रेटिंग है लेट्स से 1.5 एम्पेयर। लेट्स से मैंने चूज किया क्योंकि मेरा जो डिवाइस है रेजिस्टर आर ये नॉर्मली 1 एम्पेयर पे काम करता है, तो फ्यूज उससे थोड़ी सी ज्यादा रेटिंग का होना चाहिए। उस जितनी रेटिंग का अगर हो गया तो मेरे रेजिस्टर को नॉर्मल करंट 1 एम्पेयर चाहिए। अगर फ्यूज भी 1 एम्पेयर का हो गया तो फ्यूज तो फौरन 1 एम्पेयर पे मेल्ट कर जाएगा, मेरी डिवाइस कभी नॉर्मली काम ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, कमिंग बैक टू ताहा's क्वेश्चन, वो ये कह रहे हैं कि करंट ज्यादा क्यों हो जाएगा। तो ताहा, अगर हम इसके साथ एक उस जैसा ही रेजिस्टर और पैरेलल में लगा दें गलती से, क्या होगा? दो रेजिस्टर पैरेलल में जैसे ही लगते हैं उनकी रेजिस्टेंस R/2 हो जाती है, आधी रेजिस्टेंस होती है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस आधी हो, हमें पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, जैसे ही इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होगी वैसे ही इसका करंट ज्यादा हो जाएगा। जो करंट पहले 1 एम्पेयर था अब मजबूरन बैटरी से 2 एम्पेयर करंट आगे की तरफ आएगा। लेकिन क्योंकि फ्यूज 1.5 एम्पेयर का है ना, तो ये फ्यूज फौरन यहाँ से मेल्ट कर जाएगा, 2 एम्पेयर करंट सर्किट में फ्लो ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये रेजिस्टर्स भी सेफ हैं। और रेजिस्टर्स तो खैर कोई बहुत प्रेशियस चीज नहीं होते, लेकिन इसकी जगह पे दूसरी डिवाइसेस जैसे कि कोई लैंप हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है, तो लैंप्स और मोटर्स जो हैं वो इस तरीके से फ्यूज के जरिए सेफ रहती हैं। ताहा, होपफुली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी सर। ठीक हो गया। जल्दी से यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ वायर्स के बारे में बता देता हूँ। 3 तरह की तारें होती हैं। एक को हम कहते हैं लाइव वायर। लाइव वायर वो होती है जो कि पावर सोर्स से डिवाइस तक जाती है, पावर सोर्स से डिवाइस तक जाती है चार्जेस को लेकर। जबकि इसी के कंपैरिजन में एक होती है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर वो होती है जो कि डिवाइस से डिवाइस टू पावर सोर्स वापस जाती है। इसका मतलब ये है कि इफ दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये एक पॉजिटिव, ये मैंने एक लैंप लगाया है, तो वो वायर जो पावर सोर्स से लैंप तक अटैच हो रही है दैट विल बी कॉल्ड द लाइव वायर। आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसको रेड से बनाया है। और वो वायर जो लैंप से वापस बैटरी तक करंट को लेकर जाती है, इसको ब्लू से बनाया है, दिस इज द न्यूट्रल वायर। रेड वाली वायर लाइव वायर है जबकि ब्लू वाली वायर न्यूट्रल है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस फ्लो होते हुए आते हैं, इसीलिए हम इस वायर को कहते हैं लाइव वायर।
और चार्जेस अपनी एनर्जी इस लैंप को देते हैं। एनर्जी देने के बाद वो खुद वापस बैटरी तक चले जाते हैं, खुद वापस बैटरी तक चले जाते हैं। तो जिस तार के जरिए वो वापस बैटरी तक जा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। इसी के कंपैरिजन में एक तीसरी वायर भी होती है जिसको हम अर्थ वायर कहते हैं। अर्थ वायर, आप देखेंगे कि अर्थ वायर को मैंने दो अलग अलग कलर से लिखा है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि अर्थ वायर दो अलग अलग कलर्स की हो सकती है। एक्चुअली येलो और ग्रीन कलर दोनों की स्ट्राइप्स उसके ऊपर बनी हुई होती हैं। अर्थ वायर का क्या काम होता है, ये भी एक तरह की सेफ्टी प्रिकॉशन है, ये बताने लगा हूं। अर्थ वायर यूज्ड फॉर मेटेलिक डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनकी बॉडी मेटल की होती है, वहां अर्थ वायर्स इस्तेमाल होती हैं। अब अर्थ वायर का काम क्या है, लेट मी जस्ट शो यू दैट। ये मेरे पास एक तो मुझे बता सकते हैं मैंने क्या बनाया है? वॉशिंग मशीन। वाह अच्छा, इट वाज इजियर टू आइडेंटिफाई, दैट मींस ओके। अब ये एक वॉशिंग मशीन है जिसकी एक मेटल की बॉडी है, ठीक है जी। इसके अंदर एक वायर ऐसी है जो कि पावर सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज पार्टिकल्स लेकर आ रही है, अंदर कोई मोटर है उसको सप्लाई करती है, और फिर एक ब्लू वायर उस करंट को वापस सोर्स तक ले जाती है। अच्छा, अब मसला ये है कि ड्यू टू एक्सेसिव यूजेज, वक्त के साथ साथ ये जो लाइव वायर है ना, ये किसी वजह से इसकी बॉडी से टच कर जाती है। वैसे तो इनके ऊपर इंसुलेशन की जाती है, ये हमारा अगला सेफ्टी फीचर है, इंसुलेशन। वैसे तो वायर्स के ऊपर इंसुलेशन की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसुलेशन वक्त के साथ साथ डैमेज कर जाए। जब डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, देयर इज अ चांस कि लाइव वायर इसकी बॉडी के साथ टच कर जाए, क्योंकि ये मेटल बॉडी है। जब इसमें से चार्जेस बॉडी के साथ टच करेंगे तो फिर ये बॉडी के अंदर मूव करना शुरू हो जाएंगे चार्ज पार्टिकल्स, and you of course you can't see the charge particles. So while operating the metal body, if you touch the metal body, क्या होगा, चार्जेस को अचानक नजर आएगा, वाओ ये बंदा तो जमीन से अटैच हुआ हुआ है, तो ये इसकी बॉडी के थ्रू होते हुए जमीन तक चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसको शॉक लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अर्थ वायर्स की मदद से हम इन चार्ज पार्टिकल्स को एक एक्स्ट्रा रास्ता दे देते हैं ताकि वो जमीन तक जाएं। यानी जो लाइव वायर अगर किसी वजह से इसकी बॉडी से अटैच हो गई ना, तो चार्ज पार्टिकल पूरी बॉडी में घूमने की बजाय यहां से अर्थ वायर के जरिए होते हुए जमीन तक चली जाती हैं। बॉडी सेफ रहती है फॉर ह्यूमन टच। तो जी दो अभी तक तरीके आपको बताए सेफ्टी के, एक फ्यूज बताया, दूसरा अर्थ वायर बताया है। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। जी शाबाश, गो अहेड। सर ये जो वायर लगाई होगी इसकी रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी से कम होगी? जी बिल्कुल, जाहिर है वायर मेटल है, मेटल की अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी उनकी रेजिस्टेंस कम होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी। इसलिए चार्ज पार्टिकल्स ह्यूमन बॉडी से जाने की बजाय इस मेटल वायर से जाने को प्रेफर करते हैं। सही है, अच्छा ठीक है, ओके। अब इंसुलेशन ऑन अ वायर क्या होता है वो आप सब उससे वाकिफ है, लेकिन फिर भी कंप्लीशन के लिए मैं बता देता हूँ। मोस्टली वायर्स जो होती हैं वो कॉपर से बनाई जाती हैं, बिकॉज कॉपर इज एन एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वायर चूंकि कॉपर, अगर वो वायर सिर्फ कॉपर की ही हो तो ह्यूमंस अगर उन्हें कभी टच करेंगे तो खामखा उन्हें करंट लग जाएगा, यानी चार्ज पार्टिकल्स बॉडी से फ्लो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन वायर्स के ऊपर एक थिक थिक प्लास्टिक इंसुलेशन बनाते हैं, थिक प्लास्टिक इंसुलेशन बनाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इज अ गुड कंडक्टर, प्लास्टिक सॉरी इज अ गुड इंसुलेटर, प्लास्टिक इज गुड इंसुलेटर। तो इसीलिए जब इसमें चार्ज पार्टिकल यानी करंट मूव भी कर रहा हो और आप इसको गलती से हाथ भी लगा लें वायर को, वायर के प्लास्टिक वाले पोर्शन को, तो चार्ज पार्टिकल्स क्योंकि प्लास्टिक के थ्रू फ्लो करके नहीं आ सकते, तो आपकी बॉडी से गुजर के जमीन तक नहीं जा पाएंगे,
आपको शॉक नहीं लगेगा। वक्त के साथ साथ ये इंसुलेशन जो है ये डैमेज हो सकती है, वोर्न आउट हो सकती है। दैट इज अ हेल्थ हैजर्ड, वो खतरात, वो एक खतरनाक चीज है, उसका हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है। अच्छा जी, चौथी बात, सर्किट ब्रेकर्स। अब सर्किट ब्रेकर्स क्या चीज है? सर्किट ब्रेकर्स एक थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म है फ्यूजेस की, थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म है फ्यूजेस की। आपके घर में पूरा एक सर्किट ब्रेकर्स का बॉक्स होता है जिसमें हर कमरे के अलग अलग सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स काम कैसे करते हैं वो हम मैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि सर्किट ब्रेकर्स भी एक तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन ही है, लेकिन इनकी भी एक रेटिंग होती है। यानी ये अपने अंदर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज या करंट गुजरने देते हैं। अगर उससे ज्यादा गुजरने लगे तो ये सर्किट ब्रेकर्स ट्रिप कर जाते हैं। ट्रिप का मतलब ये एक बटन होता है वो नीचे हो जाता है जिससे बाकी सारे घर में करंट फिर फ्लो नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं अभी आपको गूगल पे ये दिखा देता हूँ। सर्किट ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर्स। ओके जी, दिस इज अ सर्किट ब्रेकर। इनकी वर्किंग में थोड़ी सी मैग्नेटिज्म इस्तेमाल होता है, इसलिए वो अभी हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे। ये जो रेड ब्लू और व्हाइट से नजर आ रहे हैं ये बटन्स होते हैं। जब किसी वजह से ज्यादा करंट इनमें से गुजरने लगेगा तो ये बटन ऐसे करके नीचे आ जाते हैं। अब इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि ये फ्यूज की तरह बार बार रिप्लेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि फ्यूज अगर एक दफा मेल्ट कर जाता है तो उसके बाद उस फ्यूज को दोबारा से रिप्लेस करना पड़ता है। जबकि सर्किट ब्रेकर थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म है। सर्किट ब्रेकर अगर एक दफा स्ट्रिप कर गया तो आप उसको दोबारा से बटन की मदद से ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तो सर्किट ब्रेकर फिर दोबारा फ्लिप कर जाएगा नीचे। जिस वजह से करंट बहुत ज्यादा आया है, आपको वो वजह पहले हल करनी है, फिर सर्किट ब्रेकर को ऑन करना है। यहाँ पर थोड़ी सी एक ब्रेक लेते हैं, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते। ओके, so these are a few questions from past papers, पेपर 2 के सवालात हैं। हम चाहते हैं कि इनको हम एज अ ग्रुप यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही ट्राई करते हैं। लेट्स सी। लिखा हुआ है मोटरसाइकिल बाइसिकल कंसिस्ट ऑफ 6 2 वोल्ट सेल्स इन सीरीज। इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, 6 सेल सीरीज में लगाए गए हैं, हर सेल 2 वोल्ट का है। आपको पता है सीरीज के अंदर वोल्टेजेस जो है वो एड अप हो जाते हैं। कहता है व्हाट इज द टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अगर एक सेल 2 का है और 6 सेल लगे हुए हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट्स गोइंग टू बी 12 वोल्ट। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का है 12 वोल्ट्स। ओके, तो एक आसान सा सवाल था। अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। लिखा हुआ है अ मोटरसाइकिल हेडलाइट कंटेन्स टू लैंप्स, टू आइडेंटिकल फिलामेंट लैंप्स, ओके, F and G. Filament lamp F is always lit, but filament lamp G is turned on and off by switch D. देखते हैं, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब भी आपको सर्किट नजर आए ना और आपको कुछ ना समझ आ रहा हो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आइडेंटिफाई करें। यहां से चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हुए आएंगे, इस पॉइंट तक पहुंचते हैं। अब चार्जेस दो पार्ट्स में स्प्लिट होंगे। एक पार्ट वो है जो यहाँ जाएगा, दूसरा पार्ट वो है जो यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ से ये तो स्विच खुला हुआ है, अगर स्विच खुला हुआ है तो दूसरी ब्रांच में कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं जा सकते। इसलिए ये फिलामेंट लैंप जी जो है ये इस वाले स्विच पर डिपेंडेंट है। जब ये स्विच क्लोज होगा तब चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करके इस फिलामेंट जी को ऑन कर सकते हैं। लेकिन आप देखें किसी भी तरीके से ये वाला जो स्विच है ना, ये फिलामेंट एफ को अफेक्ट नहीं करता। दैट मीन्स जब तक वो बैटरी से अटैच्ड है तब तक फिलामेंट एफ में करंट फ्लो होता रहेगा। एनीवेज, when switch D is open the battery supplies a current of 4.6। ओके ओके, कहते हैं जब ये खुला हुआ है उस वक्त बैटरी से जो करंट आ रहा है वो है 4.6।
यानी कि इस लैंप फिलामेंट एफ में से 4.6 करंट एम्पेयर करंट गुजरेगा। ओके दैट्स गुड। अच्छा जी, अब हमसे कहा गया कि टेबल को जरा कंप्लीट करें। ओके लेट्स सी। स्विच डी इज ओपन, करंट इन द फिलामेंट लैंप एफ। देखिए करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, जब तक वो स्विच खुला हुआ है बैटरी से जितना भी करंट आ रहा है वो सारा एफ में से गुजरेगा, और जब तक ये स्विच डी ओपन है जी वाले दूसरे लैंप के अंदर से तो कोई करंट गुजरता ही नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगली बात, जरा सर्किट की तरफ वापस आते हैं। सर्किट जरा मुश्किल सा लग रहा है। जब डी को क्लोज कर दिया जाए, जब डी को क्लोज कर दिया जाए, अब आप ये नोटिस करेंगे कि एक ये लैंप और एक ये लैंप दोनों अब पैरेलल में लग गए। जब भी दो डिवाइसेस पैरेलल में लगती हैं उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस जब हाफ हो गई तो बैटरी से आने वाला करंट फिर ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर पहले 4.6 आ रहा था, अब यहां से जो टोटल करंट आएगा दैट्स गोइंग टू बी 9.2। जब 9.2 करंट यहां पहुंचता है वो देखेगा मेरे पास दो रास्ते हैं, दोनों में एक जैसे लैंप लगे हुए हैं, तो 9.2 में से आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, यानी 4.6 इधर और 4.6 इधर जाएगा। सो फिल करते हैं जरा इसको फिर से। यहाँ 4.6 था, यहाँ 0 था, यहाँ पर 9.2 है, यहाँ पर 4.6 और यहाँ पर 4.6। इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप अपने सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी ना समझ आया ना तो आप डायरेक्टली मुझे कह देंगे सर नहीं पता लगा। सर आगे समझ। शाबाश। सर एम्पेयर जो होता है वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि अगर वोल्टेज जितनी मर्जी हो लेकिन एम्पेयर जो है वो उससे ज्यादा भी हो सकती है। जी ये देखेंगे, वोल्टेज क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज क्योंकि बैटरी पे डिपेंडेंट है और वो बैटरी तो हमने वही लगाई हुई है। लेट्स से 100 वोल्ट्स की बैटरी है। अब वोल्टेज आप स्विच ऑन करें या ऑफ करें, टोटल वोल्टेज तो उतना ही है ना जितना कि बैटरी सप्लाई कर रही है। इसका मतलब है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब वोल्टेज सेम हो ना उस वक्त करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। चूंकि दो लैंप जब पैरेलल में लगे हुए हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाती है तो करंट डबल हो जाता है। वोल्टेज इस पूरे प्रोसेस में चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। ये आपको अपना जवाब मिल गया। जी सर, यानी कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। जी अगर वोल्टेज सेम हो जैसा कि इस केस में था, बैटरी जो भी वोल्टेज सप्लाई करी थी वो चेंज नहीं हो रहा था। अच्छा जी, आते हैं ओके सर। नेक्स्ट पार्ट पे। लिखा है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, नेम वन एग्जांपल ऑफ ईच। इंसुलेटर की एग्जांपल में तो आप प्लास्टिक लिख सकते हैं और कंडक्टर की एग्जांपल में आप जाहिर है मेटल्स लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब एक एक्सपेरिमेंट को शो करना है और बताना है कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं। बड़ी आसान सी बात है, आप ऐसे दो टर्मिनल्स ले लें और उसको बैटरी से अटैच कर दें, यहाँ पर एक एमीटर लगा दें। जब आप एक इंसुलेटर बीच में लगाएंगे तो एमीटर की रीडिंग 0 होगी। जब आप इसके बीच में कोई कंडक्टर लगा देंगे तो फिर एमीटर की वैल्यू नॉन जीरो होगी। दैट इज हाउ यू कैन चेक कोई डिवाइस कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर इंसुलेटर लगा देंगे तो एमीटर की रीडिंग 0 होगी क्योंकि करंट कोई गुजर ही नहीं पाएगा। अगर आप कंडक्टर लगाएंगे दोनों पॉइंट्स के दरमियान में तो फिर एमीटर की नॉन जीरो वैल्यू होगी। ये 2 नंबर का सवाल ये था और एक एक नंबर की इनकी एग्जाम्पल्स थी। टोटल 4 नंबर का ये सवाल था जो यहाँ लिखा हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। मेथड समझ आया जी सबको? यस सर। यस सर। सही है, दैट्स गुड। ना आए तो आप डायरेक्टली मुझे कह सकते हैं सर ये क्या कह रहे हैं आप, तौबा करें। अच्छा एनीवेज, लिखा हुआ है फिगर 10.1 इज अ स्केच ग्राफ ऑफ करंट इन अ कंपोनेंट P अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ओके, एक करंट वोल्टेज ग्राफ है, करंट वोल्टेज ग्राफ है। ओके,
मैं ना फौरन याद करता हूँ, मेरे दिमाग को ना एक आदत पड़ी हुई है कि एग्जामिनर जब भी ग्राफ देते हैं ना, मैं याद करता हूँ कि उसका ग्रेडियंट किस चीज के बराबर होगा। ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। V इक्वल टू आई आर, जरा याद करते हैं। V ओवर आई इक्वल्स टू आर होता है। I ओवर V फिर किस चीज के बराबर होगा? करंट ऊपर ले जाए, वोल्टेज नीचे ले आए, तो रेजिस्टेंस का भी फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। करंट ओवर वोल्टेज इक्वल्स टू 1/r, यानी मुझे याद आया कि हाँ, मेरे फिजिक्स के सर ने बताया था I ओवर V जो है वो 1/r के बराबर है। दैट मींस द ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अगर इस ग्राफ का कहीं पर मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूं तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दें, तो हम कहेंगे हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, अगला पार्ट है स्टेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ पी वेरीज विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अभी अभी आप देखें, मैंने ग्रेडियंट इक्वल टू 1/r के बराबर बताया है। ग्राफ देख के क्या लग रहा है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है? सर कम हो रहा है। सर बढ़ रहा है। कम हो रहा है। जी, ग्रेडियंट इसका डिक्रीज हो रहा है। ये कैसे पता चलता है? अगर आपको मैथमेटिकल तरीका नहीं पता लग रहा तो मैं आपको जरा इंसानों वाला तरीका बताता हूँ। इमेजिन करें कि आप इस तरह की रोड के ऊपर साइकिल चला रहे हैं। तो रोड पे साइकिल चलाना पहले आसान है या बाद में आसान है? इजियर बाद में है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि शुरू में स्लोप ज्यादा थी, शुरू में ग्रेडियंट ज्यादा था, बाद में ग्रेडियंट स्मॉलर हो गया। सो ये जो ग्राफ यहाँ बनाया है ये एक्चुअली डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ है। जब ग्रेडियंट कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जानी चाहिए। यानी आप ये बता सकेंगे स्टेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ पी वेरीज विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। आप कहेंगे इट इंक्रीजेस विद वोल्टेज। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप देखें ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, और ग्रेडियंट अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस फिर ज्यादा होनी चाहिए। यही बात आपने यहाँ पर स्टेट करनी है। सजेस्ट व्हाट कंपोनेंट पी इज। अगर आपको याद पड़ता हो, मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए थे जिनका ग्राफ हमें देख के पता होना चाहिए। एक ओहमिक कंडक्टर्स, एक फिलामेंट लैंप, और तीसरा था सेमीकंडक्टिंग डायोड। तो जी इसका जो ग्राफ है ना वो एक फिलामेंट लैंप से बहुत मिलता है, तो इसका जवाब है फिलामेंट लैंप। अब सवाल ये पूछा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ पी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस चेंज क्यों होती है? किसी को याद पड़ता है ये? जी, एनीवन? अच्छा, अगर नहीं याद पड़ता तो क्या दें सर, बता दें प्लीज। सर बता दी। अच्छी सी बात थी, मैंने थोड़ी आपको जज करना है। सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये वाली बात समझ आई है कि जब ग्रेडियंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जी, यस सर। ओके, Yes, शाबाश। अब क्वेश्चन ये है कि बताएं रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? जैसे जैसे वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज क्या थी? वोल्टेज थी एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। तो जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और जब हीट ज्यादा होती है तो लेंथ बढ़ती है। आपको याद पड़ता है फिलामेंट लैंप के अंदर ऐसे करके एक मेटल का फिलामेंट हुआ करता था। जब ये हीट अप होता है ज्यादा वोल्टेजेस पे तो इसकी लेंथ बढ़ती है, ये एक्सपैंड करता है। जब लेंथ बढ़ती है तो वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। आप इसमें ये लिखेंगे एज पी डी इंक्रीजेस टेम्परेचर increases, so length increases, so
resistance increases. Ji, is that clear to all of you, my dears? Yes, sir. यस सर सर इसकी मार्क डिवीजन किस तरह होगी जी, जो मैंने आंसर जो अभी लिख के दिखाया था, जी सर ये टेम्परेचर की वजह से लेंथ का इंक्रीज, ये 1 मार्क स्कोर करके देगा। लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस का इंक्रीज, ये आपको 2 मार्क स्कोर करके देगा। 2 मार्क्स का है ये। ठीक है जी, ओके सर ओके।